ऑर्गेनाइजर्स, सबको मेरा नमस्कार। आज ये बहुत खुशी क्या बात है, मैं ऐसे कार्यक्रम आया अभी। इस कार्यक्रम हमारा मुनिश्री सुधाकर जी का कार्यक्रम में कभी भी आने के लिए मैंने क्या काम होएंगे तो भी वो काम अगले रख के दूर रख के हम सुधाकर मुनि जी के सुनने के लिए, सुधाकर मुनि जी के आशीर्वाद के लिए हम आते हैं। आज हमने इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया, हमारा महिला मंडल ने बनाया। ये हमारा महिला मंडल का कितना शक्ति है। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑलवेज think about our Nari Shakti. It seems here how they organize this function is such wonderful function. A empowered women's organization is organized this function. I express my sincere congratulations and sincere thanks to you all, and I am very glad to participate in this meeting also. हमारा देश भारत देश ये long we have a very long history है। थोड़ा मेरा हिंदी ऐसे आएंगे आप लोग। So we have a very long history and ancient history in our country. Our predecessors given a lot of moral values and our tradition, our culture and our various languages. Our diversities, different diversities, but we are all एक Bharatiya. We are all Bharatiya. See, recently we are all saw that how Nalanda University got revamped. So Nalanda University was the विश्वगुरु, सारे देश के लिए ये ज्ञान देने के लिए एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी बीच में ये पूरा डमोलिश हो गया था, बट अभी हमारा प्रधानमंत्री जी ने वो नालंदा यूनिवर्सिटी का वैल्यू का, वो नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा एंसेस्ट्रल का यूनिवर्सिटी है, हमारा देश का यूनिवर्सिटी है, हमारा देश का पुराना यूनिवर्सिटी है। इसका रिवैम्प करने के लिए ये बहुत बड़ा काम करके आज हमारा वैल्यूज हम लेके आए। ऐसे हमारा देश आज विश्वगुरु बनने के लिए हम 2047 फिक्स किया। 100 साल हम इंडिपेंडेंस बनाएंगे 2047। उस समय हमारा देश इस विश्वगुरु का होने के लिए, we will be the progressive country, we will be the leader of the world. Towards we are marching in this, towards the Viksit Bharat. We are all together, we will work. And the spiritual, our country's root, our Bharat Desh's root is the spiritual root. The spiritual is with everyone, in every mind, is every soul, our spiritual is there. So with the spiritual and happiness, healthy society, we are taking forward to this healthy society. So like सुधाकर मुनि जी, हमारा देश में thousands, lakhs of rishis, munis, they have sacrificed their life to the spiritual nation.
to the country, to the people, to the values. So they are all given the dedication to the society. So because of the sons, because of the rishis, because of the munis, our country's value is still alive. You see, so you can see the difference between the other countries. They don't have family values, but in our country family values are there. In our country, matas, sisters are there. For them, savings, our country's economy is growing. You see, for some economists, they may tell this. They used to tell, our Mataji, our Banji used to keep money in the kitchen. Whenever whenever the emergency comes, और भैया जाके बोलेंगे मेरा आज थोड़ा पैसा चाहिए, क्या करूं? माता जी ठीक है, आप चिंता मत करो, माता जी किचन जाएंगे, थोड़ा पैसा लेके आके दे देंगे. ये हमारा कंट्रीज का वैल्यू है. ये देश में और दुनिया में किसी कंट्री में नहीं है. हमारा कंट्री में ये वैल्यू सिस्टम है. ये हमारा भारत देश का इकोनॉमी आज हम आगे बढ़ रहे हैं. आज हम विश्व में 5th economy in the fastest growing economy because of our people's contribution also, our sisters' contribution. For that we are all growing, we are all forwarding, or we are taking our values and our customs towards the march of the Vishwa Bharat. My dear sisters and brothers, हम एक संकल्प के साथ हम जाएंगे. हम जा रहे हैं. आज नहीं, कल 2047 में हमारा देश विश्वगुरु बन रहे. इसका हम पूरा हम डेडिकेशन करेंगे. स्पिरिचुअली हम लेके जाएंगे. एक हेल्थी सोसाइटी बनाएंगे, एक हैप्पी सोसाइटी बनाएंगे. A happy society will leads happiness. That's why you see in our nation, I already mentioned our country's value and our yoga. Now the yoga is reached all over the world. Yoga is born in our country. This yoga now reached throughout the world. All country people, they are following our Indian yoga system. They are following our meditation system. They are following our values, our family structure. Indian family structure is the nation building structure. ऐसे ही आज हम इस कार्यक्रम के में आए थे, आप लोग के साथ बात किया. बहुत खुशी है. बहुत बहुत धन्यवाद. तेरापन महिला मंडल की ओर से मैं अरुण जी साहब, छत्तीसगढ़ सरकार के उप मिनिस्टर का स्वागत अभिनंदन करती हूँ. ललित जी पटवा से मेरा निवेदन कि वे आगे आकर स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें. हमारे दूसरे मुख्य अतिथि अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, भी हमारे साथ शामिल हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत. ललित जी पटवा, जिनका इस शहर में नाम काफ़ी जाना माना है, इनके परिचय के लिए मैं क्या बोलूं. वे परिचय के मोहताज ही नहीं हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे प्लीज़ आए और कुछ शब्द कहें. थोड़ा सा मैंने देखा बहुत अच्छी उपस्थिति, और अब ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है,
क्योंकि केवल 2 छोटे छोटे एकदम बिल्कुल छोटे छोटे वक्तव्य होंगे हमारे अतिथियों के, और उसके बाद में जो 12 मिनट का लगभग 12 या 13 मिनट की जो नाट्य मंचिका है वो रहेगी, और उसके बाद में संभवतः मंगल पाठ रहेगा। तो कोई भी भाई बहन थोड़ा सा धैर्य का लक्ष्य रखें। परम वंदनीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन नमन। पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भी मेरा और हम सभी का कोटि कोटि वंदन नमन। पूरे रायपुर शहर में एक अलग ही ऊर्जा पैदा करने वाले हमारे बीच में उपस्थित पूज्य गुरुदेव श्री सुधाकर मुनि जी महाराज साहब के भी चरणों में, आदि थाना के चरणों में भी मेरा कोटि सा नमन वंदन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि सा वंदन नमन। मेरे दिल की धड़कन मेरे पिता आदरणीय बाबूजी को नमन वंदन। मंच पे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज पधारे हुए श्री डॉक्टर मुरुगन जी का भी मैं इस सभा की ओर से, अपनी ओर से भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे लाडले प्रिय श्री उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। सभा को भी बहुत बहुत नमन करते हुए एक आखिरी धन्यवाद के रूप में श्री तेरापंथ महिला मंडल के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे बुला करके हमारा मान सम्मान बढ़ाया। पूज्य गुरुदेव हमेशा ही किसी ना किसी कार्यक्रम के माध्यम से हमको जोड़ते रहते हैं। अब बात आती है रिश्तों की डोर ना हो कमजोर। आज पूरी चर्चा उसी पर चल रही है। रिश्तों को हम कितना समझते हैं, नहीं समझते हैं, ये हमको आज देखना है। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ा रिश्ता या सबसे गहरा रिश्ता क्या होता है और किससे होता है? आप सभी का सबसे गहरा रिश्ता किससे है? अपने आप से। और मैं कहूंगा अपना सबसे गहरा रिश्ता जो होता है ना, वो प्रभु से होता है, ईश्वर से होता है। क्योंकि हर वो पल में जब हमको तकलीफ होती है, जब हमको दर्द होता है, जब हम किसी मुश्किल पे होते हैं, तो हमारे सहज ही एक नाम, सहज ही ईश्वर का नाम सामने आता है। हे प्रभु मेरी लाज रखना, हे प्रभु मुझे बचा लेना, और हे प्रभु मेरे बिजनेस में, मेरे व्यवसाय में मुझे प्रगति देना। हर काम की शुरुआत हम पूजा पाठ, साधु संतों की निश्रा में हाथ जोड़ करके, झुका करके करते हैं। और उस रिश्तों को समझाने के लिए ऐसे संत महात्मा, ऐसे गुरुवर हमारे बीच में होते हैं जो उस रिश्तों की अहमियत हमको बताते हैं कि क्या होता है रिश्ता। तो सबसे पहले रिश्ते की जो शुरुआत होती है वो ईश्वर से होती है, और ईश्वर तक वो रिश्ते को समझाने का प्रयास और आपको वहां तक ले जाने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ संत महात्मा और ऐसे गुरुदेव हमको बताते हैं। हमारा दूसरा रिश्ता होता है हमारे माँ बाप से। हम इतनी गहराई तक उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में कोई ऐसा दिन भी आता है जब उस रिश्तों की अहमियत को थोड़ा सा हम कमजोर कर देते हैं। अरे पापा तो ऐसा ही बोलते हैं, मम्मी तो ऐसी ही बोलती है। लेकिन वो रिश्ता इतना गहरा होता है कि कभी ना माँ बाप आपके प्रति कभी भी ऐसी भावना सपने में भी नहीं लाते हैं कि ये मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा परिवार ऐसा। तो वो एक ऐसा रिश्ता होता है। उसी तरह हमारा भाई बहन का रिश्ता होता है। हम उनसे जुड़ते जाते हैं। बचपन में माँ बाप, माँ बाप के बाद में भाई बहन, भाई बहन के बाद में हमारी शादी होती है, हम अपनी पत्नी से जुड़ जाते हैं। उस रिश्ते को हम बखूबी निभाते हैं और आपस में सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो रिश्ते होते हैं, उस रिश्तों की पहचान हमको करनी होती है। संख्या में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे जीवन को सही दिशा देने का काम हमारे मुनिवर करते हैं, आचार्य जी करते हैं। और ऐसे बहुत ही विद्वान, बहुत ही प्रतिष्ठित आचार्य जब यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ कहूँ
ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं आप सबको बहुत अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तेरापंथ महिला मंडल को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आचार्य जी से आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान किया। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। मैंने तो सुना था कि अरुण जी बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, और बड़े वक्ता की पहली पहचान होती है समय को पहचान लेना। अतिविराजित सभी अतिथियों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। फॉर द फेलिसिटेशन ऑफ आवर गेस्ट डॉक्टर एल मुरुगन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट तेरापंथ सभा प्रेसिडेंट मिस्टर गौतम जी गोलछा, तेरापंथ महिला मंडल प्रेसिडेंट मिसेस नेहा जैन, युवक परिषद प्रेसिडेंट मिस्टर वीरेंद्र जी डागा, टीपीएफ प्रेसिडेंट मिस्टर तरुण जी नाहर, अनुव्रत समिति प्रेसिडेंट कनक छाजेर जी, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वेलकम आवर गेस्ट। अच्छा, आप लोग एक तरफ आ जाओ बाबू, एक तरफ आ जाओ। हाँ, हम ओम अरहम को ना भूलते हुए एक बार फिर से बोलेंगे ओम अरहम। अगली कड़ी में मेरा अनुरोध अरुण साहू जी के स्वागत के लिए हमारी राष्ट्रीय प्रचार प्रसार मंत्री सरिता जी बड़लोटा, तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्ष नेहा जी जैन और सचिव मधुर जी बछावत से कि वे आगे आए और हमारे अतिथि का स्वागत करें। दीपक जी, एक को चालू रखें तो किनारे रख दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद होने वाले प्ले के लिए जितने भी कास्ट मेंबर्स हैं कृपया स्टेज के सामने आ जाएं। एक बार फिर से मैं अपने तीनों ही मुख्य अतिथियों का ओम अरहम इसी बात को समझने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी वेलकम द कास्ट ऑफ रिश्तों की डोर ना हो कमजोर, कल आज और कल। यहाँ से उठा ले बच्चे, यहाँ से ले होने वाला है, वो सेंटर टेबल ले लो, सेंटर टेबल। सभी लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। ये हमारे प्रोग्राम का अंतिम कार्यक्रम है और आप सभी इसे एंजॉय कर पाएंगे। मेरा विनम्र निवेदन सामने खड़े फोटोग्राफर्स को कि थोड़ा सा अगर आप
पीछे हो सके ताकि हम सब उसे साथ पर एंजॉय कर सके। यहाँ से चले जाएंगे ये वो भी क्या वक्त था जब रिश्तों की डोरी होती थी मजबूत, क्योंकि परिवार का हर सदस्य मजबूती से एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। वो साथ में खाना, हर मुसीबतों में एक दूसरे का साथ निभाना। बच्चे हंसते खेलते और खिलखिलाते पल जाते थे। जीवन की हर शिक्षा और जिंदगी जीने का हुनर अपने परिवार से ही सीख जाते थे। वैवाहिक जीवन भी खुशहाल और एक दूसरे के प्रति समर्पित था, क्योंकि जीवन सादगीपूर्ण और अनचाही अपेक्षाओं से विरत था। व्यापार में ना कोई होड़ थी और ना ही पैसा कमाने के लिए कोई दौड़ थी। हर महिला अपना गृहस्थ धर्म निभाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पिता थी। लेकिन अब आधुनिकता की इस चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, रिश्तों की वह मजबूत डोर हाथों से रेत की तरह फिसलती नजर आ रही है। और इन्हीं रिश्तों के ताने बाने में उलझा है हमारे शांतिलाल जी और उनका परिवार। अरे, आप शांतिलाल जी को नहीं जानते? तो चलिए आपको मिलाते हैं उनसे और उनके 4 बेटों के परिवार से। मिलिए शांतिलाल जी और उनकी पत्नी से। उम्र के इस पड़ाव में शांत और धर्म में जीवन जीना चाहते हैं। और ये है इनके बड़े बेटे प्रमोद और उनकी पत्नी, जो बिल्कुल अपने बड़ों के पदचिन्हों पर चलते हैं, एकदम शांत और सौम्य। आइए अब मिलते हैं इनके दूसरे पुत्र रवि और पुत्रवधू पिंकी से, जिन्होंने मोबाइल के प्यार में अपनी एक नई दुनिया बना ली है।